हमारी ये चिकनकारी एक संस्कृति है, एक परंपरा है। तो मैं बचपन से एक बार ये अपने माइंड में सोचती कि मैं इसको आगे ले चलूँ। आज कम से कम 250 से 300 महिलाओं को मैं खुद रोज़गार दे रही हूँ घर बैठ के, कि वो लोग घर पे काम करती हैं और सशक्त हैं। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती गाँव में रहे महिला या फिर शहर में रहे। आत्मनिर्भर सबसे ज़रूरी है आज के टाइम। In the artisan process, we usually have a role of an artisan cluster lead. In our case, in the chicken curry example, this was Mayuri, who leads her cluster and ensures process design first, quality is enhanced. In our program, her role is central because she is the master artisan who leads the change process and also helps both training people on it, reinforcing any trainings we do, as well as measuring their results and coming back to us. While artisans are themselves very proud of what they do and about the art, but the next generation usually is not, and so it's not a very aspirational job. So the objective we have with this program is to see how we can preserve the art, number one, because mostly it's dying out with the last generation. So we are trying to see how we can kind of preserve and nurture and modernize the art, as well as make it more circular and sustainable. कि ये चिकनकारी मैंने 8 साल की एज में सीखा था, बट 8 साल की एज में मुझे 18 साल का बनना पड़ा। कुछ सिचुएशनें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे 8 साल की एज में 18 साल का बनना पड़ा। पापा का राइट हैंड कटा हुआ था और लेफ्ट हैंड जला हुआ था, ऑलमोस्ट वो कुछ करने लायक ही नहीं थे। तो मैंने जब भी घर संभाला तो उस टाइम सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि और आज से करीब 25 साल पहले कुछ नहीं था हमारे यहाँ, जितना अब डेवलप है उतना कुछ नहीं था। तो मम्मी मेरी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। अब भाई बहनों को पालना तो था। माँ तो बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, वो खुद रह सकती है पर बच्चों को नहीं भूखा देख सकती। तो मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। प्लस उस टाइम हमारे यहाँ चिकनकारी की कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं था। In the artisan component of our program, we are looking on how we can get existing artisans or existing artisan cluster leads to adopt sustainable and circular processes, as well as practices which help increase their income, which are largely focused on marketing. We look at how many of those have been adopted and what their impact has been for them, and how long they have sustained, whether they have sustained after 6 months. For the artisan process, the key objective is to map every process step in the chicken curry chain or other art forms we are exploring, look at their footprint from a sustainability and circularity perspective, so whether it's CO2, whether it's water, whether it's waste, whether it's chemicals, and explore with the artisans together how this footprint can be reduced at every level. That's objective one. Objective two is to see how the process can be made more effective and efficient as well, not only from a sustainability perspective but from a process perspective. The third objective is to explore how we can improve the design and aesthetics of the process. So here we look at modern designs and embedding traditional kind of designs within them. The chicken curry art form has the following process steps. First, the fabric is sourced. Second, based on the design, the cutting and stitching of the design is done. ऐसे ऐसे करके ये सारे पैटर्न है। ये ऊपर का हिस्सा, ये हम लोग कपड़े को बिछाने के बाद में इसका पैटर्न रख कर के मार्का लगाया, निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद में ही हम इसको काटते हैं। काटने के बाद में एक बंडल को बांध देते हैं, और बांधने के बाद में टेलर को देते हैं, जो कारीगर अपने पास बैठे हुए हैं सिलाई के, उनको देते हैं। वो लोग फिर अपने तरीके से बनाते हैं, एक एक करके शाम तक की तैयार कर देते हैं। अपने यहाँ कारखाने पे ही सब कुछ सिलवाते हैं। यहाँ से सिलाई होने के बाद में फिर इसको छपाई वाला जो कारखाना अपना लगाए हुए है, वो छपाई वाला यहाँ से माल को लेके जाता है। बड़े में अगर कोई बड़ा टुकड़ा निकल आया जो बड़ा नहीं हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं ये वेस्ट हो जाएगा,
तो हम क्या करते हैं, उसको वेवी सूट बना देते हैं, जिसको कहते हैं बचकाना बना दिया। उसके बाद में भी अगर नहीं एडजस्ट हो रहा, उससे भी छोटा बच रहा है, तो हम लोग जो लोअर बनाते हैं उस लोअर की पॉकेट लगा देते हैं। कम से कम कपड़े को छींच करते हैं। नहीं देखिए, अगर सिलाई का काम किया जाएगा, टेलर के पास जाए या हमारे पास आए, चिंदी तो निकलनी है बिल्कुल, ये मान के चलिए आप। हमारे धर्म में कफन काटा जाता है जिसमें कतरन नहीं निकलती है बिल्कुल। बाकी कोई भी काम बनेगा उसमें कतरन निकलेगी। Third, the design from an art perspective is defined, based on which a block is made, and then finally the product which has been stitched is sent to for block printing. मेरा नाम मुश्ताक है। मेरे बाप ये काम करते थे तो मैं भी करने लगा उनके साथ लग के। वो करीब 80 साल बना के चले गए। अब उनके बाद फिर हम आ गए, करीब 50 साल हो गए हमको बनाते हुए। और उसके बाद में फिर भैया माँ बना रहा है। ये लकड़ी आरा मशीन से आती है, कट के वहाँ से। और उसके बाद फिर इसकी घिसाई रंधाई होती है, फिर केमिकल लगाते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर लिख के बनाते हैं। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोसेस यहाँ से है कि सबसे पहले तो ब्लॉक का इसमें जब ब्लॉक बन के आने के बाद जो है फिर इसका खेल उसके बाद जो तरी से शुरू होता है। तरी जब तक के नहीं बनेगी जब तक कि उसमें प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। तरी अरी बनाने के बाद जो है जब ये फिर चौकी पे अपने बैठेंगे, बैठने के बाद फिर प्रिंट करेंगे कपड़े पे। इसमें देखिए, इसमें जो है क्या होता है ना, इसमें जो है गोंद वोंद डाला जाता है, ठीक है। ये कम्बल है, इसके नीचे ठटिया होती है जिससे जो ब्लॉक जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये उसके ऊपर ये कम्बल होते हैं, कम्बल पे ये गोंद लगाया जाता है कि ये जो है नील को जो है नील का जो कचरा है वो नीचे कर देता है और जो नील है ओरिजिनल वो ऊपर आ जाता है, जिससे फिनिशिंग होती है छपाई में। ये नील जो है केमिकल है। ये सब आपको जो छापे देख रहे हैं सब ये 100 साल पुराने छापे हैं। ये पुरानी बखिया है, इसे आजकल जो है लोग फंदा बनाते हैं इसको, क्योंकि इसका कारीगरी नहीं है और कारीगर जो हैं वो जा चुके हैं। हम लोग यहाँ के जो है करीब 500-600 साल पुराने रहने वाले हैं, यानी हमारे दादा के टाइम से हम लोग यहीं हैं, ठीक है। हमारे पापा का काम इसी का था, ब्लॉक प्रिंटिंग का, पीछे कारखाना था हमारा, और उन्हीं ने भी करीब 50-60 साल कारखाना अपना करा। काम जो है करीब 20 साल 25 साल से हम खुद अब कर रहे हैं पापा के बाद। तो अभी आप जो छपाई का काम कर रहे हैं, बाकी चिकन का, आप चाहते हैं आपके बेटे लोग भी यही काम करें? देखिए, चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन जो आजकल का माहौल आप देख रहे हैं कि नौकरियां हैं ही नहीं। अगर मान लिए हमारा लड़का पढ़ रहा है, आज हमारा लड़का CMS में पढ़ रहा है, लखनऊ के अच्छे स्कूलों में, नई नौकरी मिली तो फिर आके यही पापा ही का काम संभालेगा। Post the block printing being completed, the product is sent for the karai or embroidery work. लखनवी चिकनकारी है ये, और हमारी जो लखनवी चिकनकारी है उसमें 36 टक्के, ये जो बेसिक 4-5 टाके चलते हैं, जैसे कि हमारी बखिया है, फंदा है, कील है, पेचनी है, टेपची है, तो इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं। इससे बढ़ के भी हमारे 36 ये कॉमन 12 से 13 टाके चलते हैं।
और इसमें कम 20 टाँके बच जाते हैं जो कि किसी को पता ही नहीं है किन टाँकों में वो यूज ही नहीं कोई गया, कि वो इतना टाका कॉस्टली पड़ जाता है, उसमें काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगती है और उसको सीखने में भी बहुत टाइम लगे। पर मेरा मोटिव ये है कि जितने हमारे 36 टाके हैं वो सारी लेडीज़ों को आने चाहिए। समथिंग नहीं आते हैं तो उनको पता ज़रूर होना चाहिए, उनको मैं बता सकूं, और ये कि कभी अगर वो चीज़ इन फ्यूचर अगर देखे तो ये ना कह पाएँ कि मुझे नहीं आता, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ये चिकनकारी हमारी लखनऊ की संस्कृति है। Once that is completed, the product goes for the dyeing. कस्टमर ने कोई कलर पसंद किया तो फिर उसने नंबर लिख के दे दिया 18L या 1L जब 32L, तो ऐसे हम लोग कलर डाई कर देते उसके कस्टमर के। इनको जैसे एक रंग से हम लोग जैसे पिंक बनना हुआ तो सिंगल रंग से बना देते हैं, अगर उसमें मिलना हो तो हम लोग को कलर अलग अलग कलर मिलाने पड़ते हैं उसमें। जैसे किसी में 2 रंग मिलाने पड़ गया हम लोग, किसी में 3 रंग, किसी में 4 रंग, ऐसे मिलाने पड़े डाई करना पड़ता है इनको। मैं 14-15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस लाइन में कभी आएँ, क्योंकि इस काम में जो है दिक्कतें कुछ हमको लगती हैं कि ऐसा वो नहीं करना चाहिए उनको। गर्म पानी का यूज़ है, कुछ केमिकल का यूज़ होता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे कभी इस लाइन में ये काम करें। जी, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे कभी इस लाइन में आएँ। ये कैसे हुआ था? ये गर्म पानी से हम जल गए थे। केमिकल से दिक्कत कोई खास नहीं होती, जे तेजाब वेजाब कभी होता है तो उससे दिक्कत होती है हाथों में, फिर ज़्यादा लग गया उसमें तो दिक्कत होती है। Post the dyeing, finally, the product is sent for washing. सर्फ में डिप करने के बाद इसको अगर पीस गंदा है तो उसको ब्रश लगा के साफ करता है। इसको पटक के धोने के बाद पीस में जो है रानी पाल दिया जाता है वाइटनर के लिए, शाइनिंग के लिए। रस्सी पे टांग के सुखाया जाता है, फिर प्रेस पूरा केमिकल यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा और एक केमिकल आता है उसका नाम नहीं मालूम, उसको डालते हैं तब जाके ये जो है क्लीन होता है। इसके अंदर ब्लीच घोली गई है, सर्फ घोल गया है, कपड़े धोने वाला सोडा है, कुकिंग सोडा है, सब मिक्स कर बनाने के बाद इसको कपड़े में डिप करते हैं। Chikankari is a very traditional art form. Originally, a lot of the practices were sustainable by definition. For example, people used to use indigo natural dyes to do the block print. They also used to wash garments naturally, etc. Now what's happened in the current state is these processes have become highly commercialized and industrialized. This has led to products being used which are not necessarily helpful for the environment. For instance, for washing, bleach is used and the products are colored again, which is super toxic for both the person doing the washing with their bare feet or bare hands, as well as for washing, removing. Once the washing happens, the chemicals then get released into the river untreated, which is even worse for the water contamination, from a water contamination perspective. A second example is currently people use natural, instead of using natural indigo color, they are using chemical colors, which are in some cases they may be certified with ASO-free certification, but mostly they are not. They are just local chemical colors, which when you wash them again, the chemicals are released into the water supply. There's many other examples like these, where now with the intervention we are basically trying to go back to natural practices, which were inherently nature and environment friendly, but also we're looking at how these can be made more scalable for the requirements of the current market. मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं 79 के बाद से काम कर रहा हूँ। 1979 के बाद से काम कर रहा हूँ। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, मेरे वालिद भी यही काम कर रहे हैं और जब से मैं लगा मैं भी यही काम कर रहा हूँ।
कपड़ा वॉश ये हम दुकानों से जो है मैला कपड़ा लाते हैं, उसको जो है फ्रेश करके धो के पहुँचाना होता है, जिसमें मेरा काम है धोना, मेरी औरत का काम है प्रेस करना। किसी में छपाई निकालने के लिए तेजाब जो अल्कोहल से बनता है उसका बहुत ज़रा सा यूज़ होता है, जिससे छपाई निकल जाती है। ज़्यादा यूज़ होने से कपड़ा कट सकता है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, हमें पता है किसमें कितना देना है। फिर उसके बाद जो है ब्लीच में बोर के, अगर हाथ क्या धुलना है तो हाथ क्या धुलता है, लेकिन सीजन अगर चल रहा है तो इतना कमा लेते हैं, खाने पीने का चल जाता है। जब सीजन डाउन होता है या जाड़ा पड़ता है तब थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते। यहाँ पे दिन भर में करीब 200 आदमी काम कर ले आते हैं, सब एकजुट होकर काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक फैमिली के हिसाब से है, वरना अगर काम 200 आदमी इकट्ठा आ जाएंगे तब भी काम नहीं हो पाएगा। And the final step is post-washing, the cutting and finishing of the product and packaging. पीस को चूँकि हिफाजत से रखना है, इसलिए 1 नंबर की प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट बैग्स हैं, हमारे पॉली बैग्स हैं, वो तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, वरना कैसे पैक करेंगे। दिखना भी चाहिए, है ना, दिखना भी चाहिए, धूल और डस्ट से भी बचाना है। देखिए, आप देख रहे होंगे जितनी प्लास्टिक यहाँ पे लगी हुई है, ये सब 1 नंबर की प्लास्टिक है। ये अभी 10 टाइम्स रिसाइकल हो सकती है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो उस तरह की प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं जो ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल से बनती है प्लास्टिक के, तो ये कभी कचरा नहीं होगी, ये 10 बार अभी रिसाइकल होगी। और फिल्टर करते हैं, रिसाइकल करते हैं, फिल्टर करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो ये तो कचरा नहीं है। पिताजी का ये व्यापार था, तो बचपन से ही यही कुर्ते और कपड़ा और यही सब तो रचा बसा था, ब्लड में ही था कि कुछ भी करेंगे तो इसी काम में सफलता मिलेगी, इसी काम में। पिताजी की बनाई हुई व्यवस्था को, विरासत को संभाल रहे हैं, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जो उन्होंने पाथ बना के दिया उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। करत करत अभ्यास ने जड़मत होत सुजान, जैसे कहावत है ना, तो करते करते इसमें रच बस गए। तो ये तो ऐसे ही है जैसे बच्चा मिट्टी के खिलौने खेलता है, मेरे लिए वैसे ही है। मेरे लिए ये नहीं कपड़ा लेना है, ख़रीदना है, क्या करना है, प्रोसीजर सब दिमाग में है, सेटअप है। कोई भी कपड़ा हो, कैसा भी हो, उसको बना देंगे, कुछ भी जैसा आप चाहो वैसा बन जाएगा। जैसे एक गांव में 50 लड़कियां हैं, किसी गांव में 70 लड़कियां हैं, तो एक एक पीस बनाता है, क्योंकि वो वॉल्यूम होता है हम लोगों के पास। 500-700 पीस बनाने हैं तो एक बंदा तो नहीं बना सकता है। देखिए, मशीन कोई भी चीज़ अगर बनाएगी, पर्टिकुलर कोई एक बूटा बनाएगी, तो उसकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मशीन एक जैसे ही बूटे करोड़ों बना देगी। लेकिन जो निडल वर्क है, जो हैंड वर्क है, जिसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, कि जैसे सिग्नेचर 2 व्यक्तियों के पृथक पृथक होते हैं, इसी तरह से बूटे, जो चिकनकारी का काम जो निडल से करेगा, हैंड वर्क करेगा, कोई भी लड़की एक जैसा काम नहीं बनाएगी। 2 लड़कियां एक ही बूटे को 2 तरह से बनाएंगी, वही एक बूटे को 100 लड़कियां 100 तरह से बनाएंगी, 100 तरह का काम दिखेगा। यही है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसी तरह का काम है हमारा। We integrate sustainability and circularity in the artisan process by looking at the overall footprint from a CO2 perspective, any waste generated in the process, any water wasted in the process, and finally any chemicals going into the environment. We look at what is the impact these practices have created on the environment. So we track how much waste has been saved, how much CO2 has been saved, how much water consumption has reduced, and if there's any reduction in chemical footprint. In the next few months, we'll be exploring interventions such as changing the paint used, which making it more eco-friendly and sustainable. Secondly, how we can upcycle the textile waste generated in the process.
Thirdly, looking at water filters to reduce any chemical release into the river, and also have more water efficient practices. हर एक स्टेज के पीछे किसी ना, जैसे कि मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट करने में मेरी बैकग्राउंड है, ऐसे ये चिकनकारी के जो टाके हैं इनके पीछे भी बैकग्राउंड है इनका। तो जब मैं मम्मी को मेहनत करती हुई तो देखती थी, तो मैं एक बार ये सोचती थी काश शायद मैं एक लड़का होती तो मैं अपनी माँ की हेल्प कर पाती। उस टाइम मुझे अफसोस था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। एंड मुझे प्राउड है कि मैं एक वुमेन हूँ, आज इतने लोगों के बीच काम कर रही हूँ। इस चीज़ का तो मुझे है कि शायद लड़का होके मैं उस टाइम तो मम्मी की हेल्प कर लेती, लेकिन उनके नाम को जो मैं आज लेके जा रही हूँ वो नहीं ले जा पाती।